Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 9th of November 2021, Tuesday. Inspiration of the day is life is never easy. There is work to be done and obligation to be met. Obligation to truth, to justice and to liberty. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. New plan to tax blockchain ecosystem in the works. After the adoption of NFT, that is non-fungible tokens in the country, now government is planning or examining the proposal to tax the blockchain ecosystem, and that includes the cryptocurrencies as well as any digital tokens just like NFT. So to understand this news, it is very important to understand few terminologies. That is, what is this non-fungible tokens, what is cryptocurrency, and what is blockchain technology, and what are actually these digital tokens and why they are actually meant for. Recently, Government of India has adopted this particular NFT, and after the popularity of this NFT or non-fungible tokens by different stakeholders, including the organization, with the celebrities endorsing them, and the pace of commercialization has led the government to again examining the proposal that how to tax these blockchain ecosystem, more specifically these cryptocurrencies or digital tokens that carry some monetary value. In technical terms, these NFTs are basically a non interchangeable unit of data. So it is a non-interchangeable unit of data stored on a digital ledger, and we all know in blockchain technology, digital ledger is one of the very important element of this complete ecosystem. This is the digital ledger in the blockchain technology that actually make this blockchain technology more authentic, more useful, more reliable, as well as more secure. So whenever I say non-fungible tokens, it is nothing but just a non-interchangeable unit of data that is stored on any digital ledger, and it is basically used to represent easily reproducible items such as photo, video, audio files and other type of digital files, such any unique item. And definitely it used the blockchain technology to establish a verified and public proof of ownership. So if there is non-fungible token, there must be some fungible tokens. Yes, there are two types of token in terms of fungibility. We can say non-fungible and fungible. So what is the real meaning of non-fungible here? Non-fungible more or less means that it is unique and cannot be replaced with something else. So always remember this word non-fungible especially represent the uniqueness of that particular unit of data. Whereas if we talk about the Bitcoin is fungible. It can be replicated, it can be reproduced, a trade one for another Bitcoin, and we will have exactly the same thing. So NFTs are basically unique assets that cannot be replaced with something else and are verified and stored using the blockchain technology. Now these days, in these particular NFTs are being used from music to website domain, but the current craze is really around the digital artwork. So if any owner want to held or hold or possess any sort of digital assets or digital goods, in that case these NFT tokens played very important role. They make sure that that particular piece of art, that the particular piece of data cannot be replicated, cannot be duplicated, and that is why now these days large numbers of celebrities are actually endorsing this use of NFT. So NFT can really be anything digital, such as drawing, music, your brain downloaded and turning into AI. It could be anything, but a lot of current excitement is around using this tech to sell the digital art. And I hope that we all know about blockchain. So blockchain is nothing. It is a shared
immutable ledgers for recording the transaction, tracking the assets, building that trust. And that is why now these days blockchain technology is being used worldwide. A number of stakeholders are actually adopting the blockchain technology, and that is why there's a myriad application of blockchain technology. It is not being only used in business but in number of other areas or other domains, and that is why this NFT token or FT token is being used through blockchain technology in order to store the digital art, in order to protect that digital art. सो जिस तरह से NFT का यूज़ बढ़ रहा है, डिजिटल टोकन्स का यूज़ बढ़ रहा है इंडियन लैंड में, और इसके अलावा जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का भी यूज़ बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, उसको देखते हुए नाउ इट इज़ मैंडेटरी और इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर द टैक्स अथॉरिटीज़ और द गवर्नमेंट टू formulate or to come with a framework that is used for taxing these types of digital assets or digital transactions. So the tax department wants a framework to tax the use of blockchain for commercial purpose to be implemented even before the government bring in the legislation for cryptocurrencies and एनी अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि विंटर सेशन में, इन द विंटर सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, दिस पर्टिकुलर बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड. तो जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल टोकन्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट पर भी और टैक्स अथॉरिटीज़ पर भी प्रेशर पड़ रहा है, पुश आ रहा है कि ये इस बिल को जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि टैक्स को, जब जितने भी डिजिटल टोकन्स हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, उनके टैक्सेशन का अरेंजमेंट किया जाए. अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देयर इज़ अबाउट 6 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री एस्टिमेट्स. देयर इज़ अ 6 ट्रिलियन investment in cryptocurrency is there by Indian investors. And if we talk about the NFTs, अगर NFTs की बात करें तो celebrities like Amitabh Bachchan, Salman Khan, all these celebrities including the Kamal Hassan, politician Kamal Hassan, all these are all set to become the first Indian celebrity to launch their own digital avatar in metaverse. So now for government, is it a time to bring the legislation, a piece of legislation that will create the facilitative framework for introducing an official digital currency by RBI, as well as also regulate the use of NFT or any sort of digital asset. Now these days digital currency एक asset है, इसके अलावा बहुत सारे और भी digital intellectual creations हैं जो कि asset का role play करते हैं. They have some monetary value, they have some goodwill, and for that there need to be taxation. Definitely अगर कोई particular asset monetary value carry कर रहा है तो उस पर टैक्स लगाना it's quite rational. और अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी, NFT, डिजिटल टोकन्स अभी बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है. इवन डिजिटल करेंसीज की अगर हम बात करें, अगर अलग असेट्स को, अदर डिजिटल आर्ट्स को छोड़ दें, तो डिजिटल करेंसी की बात करें तो अभी इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ लीगल अडॉप्शन. और अगर टैक्सेशन आ जाता है, कोई टैक्सेशन का रजीम आ जाता है इन असेट्स को टैक्स करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर पुश मिलेगा. ऑल्दो इट इज़ नॉट मीन दैट ट्रेडिंग इन दीज आइटम्स और दीज असेट्स विल बी लीगलाइज्ड और लेजिटिमेटाइज्ड, बट येस, कहीं ना कहीं इस बात को पुश जरूर मिलेगा कि ओके, गवर्नमेंट इज़ मूविंग टूवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन. क्योंकि अगर वर्ल्ड एक डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेंड है एक डायरेक्शन में, तो कोई भी कंट्री उससे एकदम से अलग नहीं रह सकता, या हमसे बोलते हैं वैक्यूम नहीं रह सकते हम. तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट डिजिटल असेट्स, डिजिटल टोकन्स, डिजिटल करेंसी को टैक्स करने के लिए फ्रेमवर्क लाने जा रही है. मोर और लेस बहुत जल्दी ये जो प्रपोज फ्रेमवर्क है ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा पार्लियामेंट में. सो प्रपोजल टू इम्पोज द GST ऑन दीज क्रिप्टो करेंसीज एंड डिजिटल असेट्स. हालांकि इस बात का भी क्लियरिटी रहेगी, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि टैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट इन सारे असेट्स को लेजिटिमेटाइज कर रही है. तो GST के अंदर NFT को, डिजिटल टोकन्स को, करेंसीज को सर्विस ट्रीट किया जाएगा. ट्रांसफ़र, स्टोरेज, सप्लाई, एक्सचेंज, मैनेजमेंट, ट्रेड, क्रिएशन, ऑल दीज विल बी कंसीडर्ड एज सर्विस एज पर द GST रजीम, और सर्विस के तहत ही उसको टैक्स किया जाएगा एज पर द रीसेंट प्रपोजल.
इसके अलावा फ्रेमवर्क टू टैक्स द यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बीइंग कंसीडर्ड। अपार्ट फ्रॉम असेट्स, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए भी शायद गवर्नमेंट टैक्सेशन के प्रोविजन लाएगी इस पर्टिकुलर बिल में। सिमिलर प्लान वॉज बीइंग कंसीडर्ड इन फाइनेंशियल 2018 व्हेन क्रिप्टो करेंसी ट्रेड स्टार्टेड फ्लॉरिशिंग। हालांकि अभी तक कोई ऐसा रेजीम या कोई ऐसा फ्रेमवर्क इंडिया में नहीं आया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। 7 BCM of LNG reserves may rein in fuel price volatility। तो जिस तरह से फ्यूल मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, तो उसने कहीं ना कहीं इंडिया को प्रॉम्प्ट किया है दैट इंडिया शुड लुक इनटू इट्स स्ट्रेटेजिक रिजर्वॉयर्स। और हमने इस न्यूज़ को कई बार डिस्कस भी किया है। कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इंडिया को इस बात के सजेशन दिए हैं कि इंडिया को अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व का जो बेस है उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोचना चाहिए। हम क्रूड ऑयल के लिए हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर बताइए कि अभी करंटली जो ऑपरेशनल हैं, बिल्ड कितने हो रहे हैं वो नहीं, ऑपरेशनल कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्वॉयर्स हैं इंडिया के पास फॉर क्रूड ऑयल और कहाँ कहाँ हैं। तो क्रूड ऑयल के लिए तो हमारे पास अभी कुछ अमाउंट में स्ट्रेटेजिक रिजर्वॉयर्स हैं, लेकिन अगर हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें, LNG की बात करें, तो उसके लिए अभी हमारे पास सफिशिएंटली strategic reserves नहीं है। While the country would need around 7 to 8 billion cubic meter of reserve to successfully mitigate the price fluctuations। तो जिस तरह से LNG के प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज़ करने चाहिए। और जिस तरह से इंडिया में यूजेस है, अगर हम बोले LNG का जो यूज़ है इंडिया में, जितने अमाउंट में LNG यूज़ होती है उसको देखते हुए इंडिया के पास कम से कम 7 से 8 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, का रिजर्व होना चाहिए LNG का। इसके रिजर्व के बाद से अगर इतना रिजर्व इंडिया क्रिएट कर लेता है, तो इसके बाद से जो जिस तरह से फ्लक्चुएशंस होते हैं, वोलाटाइल होती है फ्यूल मार्केट इन ग्लोबल लेवल पे, उस वोलाटिलिटी को थोड़ा सा मिटिगेट किया जा सकता है या उसका इम्पैक्ट जो है वो मिटिगेट किया जा सकता है। द लोअर शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द कंट्रीज एनर्जी मिक्स could put a question mark on the viability of such reserve। however, कहना बहुत आसान है, बट लेकिन नेचुरल गैस का इंडिया के एनर्जी मिक्स में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कोल और क्रूड ऑयल। तो एनर्जी मिक्स की जो नीड है उसमें नेचुरल गैस या LNG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। तो कितना वायबल रहेगा गवर्नमेंट के लिए इस तरह के रिजर्वॉयर्स को बनाना, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा। अगर आप स्ट्रेटेजिक रिजर्वॉयर्स बनाएंगे LNG के लिए, नेचुरल गैस के लिए, तो डेफिनेटली इट इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट के साइड से भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन क्या इतना इन्वेस्टमेंट लगाना गवर्नमेंट के लिए फ्रूटफुल होगा, वायबल होगा? क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा LNG या नेचुरल गैस इंडिया के एनर्जी मिक्स में यूज़ होती ही नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट मोरलेस जो होती है वो क्रूड ऑयल से या कोल से पूरी होती है। तो क्या इतना इन्वेस्टमेंट लगाना वायबल होगा अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग? और फ्यूचर में वैसे भी कंट्री जो है वो इस बात के लिए प्लान कर रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स पर शिफ्ट कर जाएंगे। हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि इंडिया ने जो टारगेट सेट किया है अपने लिए 175 गीगावाट्स का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 22 तक था, जो कि इंडिया अचीव कर चुका है। इसके अलावा आगे आने वाले कुछ सालों तक के लिए भी गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 500 गीगावाट्स का टारगेट रखा है। तो अभी LNG के लिए, नेचुरल गैस के लिए इतना इन्वेस्टमेंट लगाना कितना प्रॉफिटेबल है, कितना वायबल है, जहाँ पर हम 7 से 8 BCM का LNG रिजर्व स्टोर कर सकें, just like other developed economies। And according to the Gas Exporting Countries Forum, GECF, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं GECF, गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम, द ग्लोबल गैस स्टोरेज कैपेसिटी इज अराउंड 417 BCM, जिसमें सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दोनों का मिलाकर के 55% का शेयर है अकेले केवल इस स्टोरेज कैपेसिटी में। तभी वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 417 BCM की स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसमें 55% तो केवल यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के पास है। दिस कवर्स द 80 days गैस रिक्वायरमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन and 58 days gas requirement of United States।
और अगर इसी कंपैरिजन में इंडिया की बात करें तो इंडिया कंज्यूम रफली 33 BCM ऑफ नेचुरल गैस इन फाइनेंशियल ईयर 19 and 31 BCM in financial year 20, and according to this country requires 7 to 8 BCM reserve to mitigate the price fluctuation. अगर प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो सप्लाई कंस्ट्रेंट के वजह से और जिस तरह से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है रिकवरी के लिए, उसकी वजह से जो जितने भी क्रूड ऑयल के सोर्स, जितने भी एनर्जी के सोर्सेज है, क्रूड ऑयल नहीं, जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं उन सब के प्राइस बढ़े हैं. एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट हैज़ ऑल्सो पुश द LNG टू रिकॉर्ड हाई लेवल, दैट इज $56.326 मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट MMBTU, जो कि अक्टूबर में इतना प्राइस था कि हम बोल सकते हैं $56 पर MMBTU LNG का प्राइस है. एंड दिस इज आफ्टर प्राइस हैड क्रैश टू रिकॉर्ड लो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर 2020, जबकि पैंडेमिक की फर्स्ट वेव हिट हुई थी उस समय कितना था, $2. कैन यू इमेजिन, $2 से बढ़कर $56 तक के रेट आ गए हैं किसके, LNG के. So it's a high fluctuation in LNG and that is why experts are demanding. But yes, another number of questions are there कि कितना viable है इतना इन्वेस्टमेंट करना, जबकि हमारे उसमें नेचुरल गैस का यूजेस इतना ज़्यादा नहीं है. So India would need strategic natural gas reserve to meet 20% of its total requirement. But question still the same, whether this particular amount of investment, large investment, is actually required as per the future targets, as per the future planning. बट फिलहाल के लिए रिजर्व गैस LNG और नेचुरल गैस के जैसे जैसे प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अगर इंडिया के पास होता स्ट्रेटेजिक गैस स्टोरेज और रिजर्वॉर्स, तो इंडिया को वो प्राइस फ्लक्चुएशन में या प्राइस को स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता. और जिस तरह से गैस फील्ड डिप्लीट कर रही है उसको देखते हुए भी, इंडिया में ही नहीं, जो कंट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं गैस को, वहाँ पर भी गैस के जो रिजर्वॉर्स हैं, बेसिन्स हैं, दे आर गेटिंग डिप्लीटेड. उसके लिए भी एक्सपर्ट्स ने बोला है कि दैट पर्टिकुलर रिजर्वॉर्स विल एक्चुअली सर्व एज अ कुशन फॉर इंडियन इकोनॉमी. तो गवर्नमेंट कैसे इस प्रपोजल को लेती है, यह भी फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए इस पर कंसिडरेशन दिया जा रहा है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. मिनरल कंसेशन रूल ट्विग्ड टू इम्प्रूव ease of doing business. To improve the ease of doing business in domestic mineral sector, the central government in a notification amended the mineral concession rule 2016. तो जिस तरह से अभी मिनरल इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो रही है कोल की शॉर्टेज के बाद से, और जो अलग अलग रॉ मटेरियल है उनकी शॉर्टेज के बाद से, इसको ध्यान में रखते हुए और इंडिया में डोमेस्टिक मिनरल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने मिनरल कंसेशन रूल 2016 में कुछ चेंज किए हैं. मेजर अगर चेंजेस की बात करें तो उसमें पार्शियल सरेंडर्स ऑफ माइंस इज नाउ बीइंग अलाउड, सेल अप टू 50% ऑफ मिनरल बाय कैप्टिव ओनर्स has also been allowed. Apart from it, easy transfer of mines has also been allowed. तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने माइंस ओन कर रखी बट दे डू नॉट वांट टू produce, they do not want to explore, और वो नहीं यूज करना, they can do the transfer of mine, an easy transfer of mine, so that that particular mine or resource can be utilized by some other organization और कहीं idle ना पड़ा रहे. So these amendments जो लाए हैं गवर्नमेंट ने amendments, these amendments are actually going to be implemented from November 2, यानी जो इस नवंबर 2 है इससे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एंड विल बी कॉल्ड एज अ मिनरल कंसेशन फोर्थ अमेंडमेंट रूल 2021. तो ये आप याद रखेंगे कि इससे पहले कौन सा एप्लीकेबल था, दैट वाज द मिनरल कंसेशन रूल 2016. अब कौन से एप्लीकेबल है, मिनरल कंसेशन रूल्स 2021 एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नोटिफिकेशन. और इस रूल के अकॉर्डिंग, इफ in any lease where the mineral is required to be used for captive purpose, the lessee may sell up to 50% of total produce in a financial year. But लेकिन lessee को ये ensure करना पड़ेगा that not less than 50% of the produce is used to meet the requirement of end use plant linked with that particular mine. So what is captive mine? Captive mines are basically those mines that are owned by the private companies.
The coal or the mineral produced from these captive mines is for the exclusive use of the owner company of the mine. So that definitely company cannot sell the coal or the mineral outside. और अगर आपको recently याद हो तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया था जहां पर अलाउ कर दिया था कैप्टिव माइंस ओनर को कि वो अपना जो प्रोडक्शन है वो अपने यूज के अलावा बाहर भी सेल कर सकते हैं। कब किया था? जब कोल की शॉर्टेज हुई थी और गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे, डायरेक्शंस भी दिए थे ओनर्स को कि अगर आप नहीं प्रोड्यूस करेंगे, नहीं आप माइंस सिर्फ कैप्चर करके रखेंगे तो गवर्नमेंट विल टेक द नेसेसरी एक्शन और उसमें या तो फाइन इम्पोज करेगी या गवर्नमेंट आपसे वो कैप्टिव माइन ले लेगी। तो कैप्टिव माइंस ऐसे माइंस होते हैं जो एक प्राइवेट कंपनी ओन करती है और उसका सीधा पर्पस होता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है आपने उसके प्लांट की उसको पूरा करे, उसको मार्केट में सेल करने के लिए नहीं होता। लेकिन रिसेंटली आफ्टर फ्यू अमेंडमेंट गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द मिनरल माइंस ओनर, कैप्टिव माइन ओनर्स टू सेल अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ देयर टोटल प्रोड्यूस इन अ फाइनेंशियल ईयर टू द ओपन मार्केट। बट येस दे नीड टू मेक श्योर कि 50% से कम भी उनके जो खुद के यूज़ के लिए वो भी यूज़ करें। ऐसा नहीं कि वो पूरा सेल कर रहे हैं, 100% प्रोडक्शन सेल कर रहे हैं ओपन मार्केट में। And definitely this move will ensure better availability of the mineral in open market and will take away a lot of pressure on production as well as in prices. So all major minerals are part of this amendment, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे वो बॉक्साइट हो, लाइमस्टोन हो, जिंक हो, मैग्नीज हो, इस तरह के सारी जिन माइंस हैं वो सब ओनर्स इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से benefit होंगे. So these are the major amendments that has been proposed into Mineral Concession Rule 2021. तो 50% तक का जो है वो प्रोडक्शन वो ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट 50% दे शुड यूज फॉर देयर ओन पर्पस. जिंक, आयरन, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, मैग्नीज, किसी भी तरह की माइंस हैं वो सब उससे बेनिफिट होंगी. लेजी को एडिशनल रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी अब स्टेट गवर्नमेंट को. क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो ये शो करते थे कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उससे वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए वहाँ से प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर माइन को यूज़ कर रहे हैं. बट नाउ गवर्नमेंट हैज़ अलाउड देम टू सेल इनटू द ओपन मार्केट, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट. और अगर कैप्टिव माइन ओनर्स प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उन्हें जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को भी ज़्यादा रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी फॉर कीपिंग दोज और फॉर लीजिंग दोज माइंस. सो लेजी विल बी अलाउड टू सरेंडर द इवन पार्ट ऑफ देयर माइंस. और अगर लेजी को लगता है कि दिस नॉट प्रॉफिटेबल वेंचर तो वो चाहे तो पूरी माइंस ट्रांसफर कर सकते हैं, पार्ट ऑफ माइंस का ट्रांसफर कर सकते हैं. Transfer of mine can happen without any charges. And apart from it, रॉयल्टी में अगर लेट पेमेंट हो रहा है, जो गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करनी है कैप्टिव माइन ओनर्स को, अगर उसमें लेट पेमेंट हो रहा है तो उसकी पेनाल्टी को भी रिड्यूस कर दिया है. पहले 24% पेनाल्टी थी, अब गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके 12% कर दिया. सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स इनटू मिनरल कंसेशन रूल्स आर गोइंग टू actually boost the mineral sector in Indian economy. Now let us look into some other news clips. IT firms eye option outside the Haryana. The information technology industry evaluating the options of other territories in Delhi और in NCR region. क्यों? क्योंकि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसके जो डिसीजन आया है, उस डिसीजन के तहत हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड 75% जॉब रिजर्व फॉर द लोकल इन द स्टेट फ्रॉम जनवरी 15-22. तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जितनी भी इंडस्ट्री IT कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ उसमें जो जॉब्स हैं उसमें 75% नौकरियां आपको लोकल्स को देनी पड़ेंगी. और इसी अनाउंसमेंट, ऐसी रूल के बाद से, हरियाणा के रिजर्वेशन के बाद से ऑल IT फॉर्म्स जो कि गुड़गांव में इस्टेब्लिश हैं, आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग गुड़गांव इज द पार्ट ऑफ हरियाणा, और बहुत ज़्यादा कैजुअल टर्म्स में से बोलते हैं NCR रीजन में आते हैं. तो अब दे आर नाउ लुकिंग फॉर अदर टेरिटरीज इन NCR रीजन. कंपनीज ने अब ढूंढना शुरू कर दिया है कि वो अपने ऑफिस को शिफ्ट कर दें हरियाणा से दिल्ली के NCR रीजन के किसी और लोकेशन में, जिससे कि उन पर यह 75% का जो ऑब्लिगेशन है वो ना होता. सो इंडस्ट्री इज इवेल्युएटिंग व्हाट द ऑप्शंस आर इन दिल्ली एंड नोएडा इन टर्म्स ऑफ फ्रेश ग्रोथ, बिकॉज दिस लॉ अप्लाइज ओनली टू द न्यू जॉब्स. जो नई जॉब जनरेट होंगी उन पर अप्लाई होगा. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जो पहले जॉब पा चुके हैं, उन पर इस तरह का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. द अदर थिंग इज हाउ दे कैन लीवरेज द हाइब्रिड मॉडल ऑफ दिस टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर कंप्लायंस ऑफ लॉ. तो उसके लिए वो डिफरेंट अगर हम बोले ऑप्शंस या एवेन्यूज ढूंढ रही हैं.
अगर हम बात करें आईटी फर्म्स की तो नास्कॉम सर्वे इन मार्च फाउंड दैट अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 IT जॉब्स इज गोइंग टू बी फाउंड इन दिस पर्टिकुलर स्टेट। तो अब देखना है कि ऐसा ना हो कि हरियाणा के बाद से जो अदर स्टेट्स हैं वो भी इसी तरह के कुछ लॉ ला दें जिससे आईटी फर्म्स के लिए एक ऑब्लिगेशन हो जाए कि लोकल को लेना। जनरली होता क्या है, प्राइवेट कंपनीज कॉम्पिटेंसी के बेस पर हायरिंग करते हैं। दे डू नॉट वांट एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशंस और ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब और इन टर्म्स ऑफ देयर रिक्रूटमेंट्स। तो इस तरह के ऑब्लिगेशन के बाद डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर रूल इज गोइंग टू हैम्पर द इन्वेस्टमेंट इन हरियाणा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। T+1 सेटलमेंट टू रोल आउट इन फेजेस फ्रॉम February 25। तो काफ़ी हो हल्ला के बाद से जो T+1 सेटलमेंट, आपको पता होगा इंडिया ने 2+2 से T+1 सेटलमेंट में मूव किया है। कई सारे इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी इंडिया में इस बात की अपील दी थी कि T+1 इज़ नॉट गुड फॉर देम। बहुत सारे रेजिस्टेंस फेस करने को मिले, बट नाउ फाइनली इंडिया स्टॉक एक्सचेंज हैव डिसाइडेड to jointly introduce the T+1 settlement cycle in phase manner, जो कि February 25 से स्टार्ट होगा, beginning with the bottom 100 stocks by market capitalization। तो 10 T+1 25 फरवरी के बाद से फेज वाइज मैनर में इम्प्लीमेंट होगा इनटू डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस। इतने रेजिस्टेंस के बाद भी इंडिया हैज़ मैनेज्ड और इंडिया इज actually implementing this T+1 settlement, and I hope that you all must be knowing what is T+1 settlement। हमने कई बार डिस्कस भी किया है न्यूज़ में। दिस इज अ सेटलमेंट साइकिल, एक्चुअली वी कॉल दिस T+1 अ सेटलमेंट साइकिल। कब कोई ट्रांजेक्शन सेटल होगा जो कि स्टॉक एक्सचेंज में किया गया है, फाइनल सेटलमेंट उसका फाइनल और फुल प्रूफ सेटलमेंट कब होगा। सो सेटलमेंट साइकिल बेसिकली रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड विद इन विच द स्टॉक एक्सचेंज हैव टू सेटल the security transaction, and T+1 means settlement will have to be cleared within 1 day of actual transactions taking place। और एक ही दिन में होगा। और इसी को लेकर के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन से बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर करी थी और कहा था कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है इस तरह से T+1 में मूव कर पाना, क्योंकि डिफरेंस टाइम जोन की वजह से इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू फॉलो दिस T+1 सेटलमेंट साइकिल। और आपको याद हो केवल और केवल चाइना, अब तो इंडिया भी इंक्लूड हो गया इसमें, वर्ल्ड में केवल और केवल चाइना में T+1 सेटलमेंट साइकिल अडॉप्ट की गई है या यूज़ होती है या इम्प्लीमेंट होती है। अब चाइना के बाद इंडिया विल बी द सेकेंड कंट्री जहाँ पर T+1 का अडॉप्शन, सेटलमेंट साइकिल का अडॉप्शन है। September 7 को सेबी ने इस पर्टिकुलर चेंज को अनाउंस किया था कि इंडिया इज़ नाउ गोइंग टू अडॉप्ट द T+1 सेटलमेंट साइकिल फ्रॉम January 1। हालांकि काफ़ी सारे रेजिस्टेंस के बाद से अब डिसाइड ये हुआ है कि 25 फरवरी से फेज मैनर में इंडिया में T+1 सेटलमेंट साइकिल का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत 100 स्टॉक एक्सचेंज से होगी, इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग स्टॉक्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फ्यूचर मूव सुप्रीम कोर्ट टू सीक स्टे ऑन सिंगापुर ऑर्डर। अमेजॉन फ्यूचर का जो क्लैश चल रहा है उसको लेकर के अमेजॉन ने सिंगापुर कोर्ट में दाखिल दिया था, अपना अर्जी दाखिल करी थी। उसके बाद से फ्यूचर ग्रुप ऑन मंडे मूव सुप्रीम कोर्ट टू अपील अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट which had endorsed a Singapore arbitration panel decision to freeze this particular deal। कितने करोड़ की डील हुई थी? 24,000 करोड़ की डील हुई थी। फ्यूचर की रिलायंस के से उस डील को फ्रीज करने का ऑर्डर दिया था किसने? जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन पैनल है उसने, और इसके बाद दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसने इसको इंडोर्स किया था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था। लेकिन अब इन दोनों के ही अगेंस्ट जो फ्यूचर ग्रुप है वो सुप्रीम कोर्ट गया है। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, सिंगापुर आर्बिट्रेशन पैनल का जो ऑर्डर है, उसको फिलहाल के लिए रिवर्ट कर दिया जाए। तो देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फ्यूचर को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। अमेरिकन रिटेल जियांट अमेजॉन विच ओन 9.9% स्टेक इन फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अकॉर्डिंग वो एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर है, सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है, और उसके अकॉर्डिंग अमेजॉन के अकॉर्डिंग उसको पहले चॉइस मिलनी चाहिए थी किसी भी तरह के एसेट्स को खरीदने के लिए। लेकिन
दोनों का अपना अपना अलग व्यू है। फ्यूचर का कहना है कि पहले अमेज़ॉन को ऑफ़र किया गया था, अमेज़ॉन के मना करने के बाद वो डील रिलायंस को ऑफ़र करी गई है। फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की 24,000 करोड़ की ये डील हुई थी और इसके बाद अभी तक ये डोल टर्म की सिचुएशन में है, फाइनलाइज नहीं हुई है। एंड दिस इज़ द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ फ्यूचर ग्रुप। कौन कितना किसके सब्सिडी में कितना कितना ओन करता है as per the recent status. So let us see सुप्रीम कोर्ट में क्या फ्यूचर को कुछ रिलैक्स मिलता है या कुछ रिलीफ मिलता है या नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गुजरात रिमेन न्यूमेरो यूनो इन लॉजिस्टिक इंडेक्स। तो गुजरात ने फिर से 20 स्टेट्स को पीछे करते हुए नंबर 1 पोजीशन गेन करी है। किस इंडेक्स में? लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। तो गुजरात के बाद हरियाणा, पंजाब, इन दो स्टेट्स ने क्रमशः 1, 2, 3 पोजीशन या रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 पोजीशन होल्ड करी है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। एंड डेफिनेटली गुजरात, वाई गुजरात इज हेडिंग और एवरी टाइम रैंकिंग टॉपिंग और एज top this ranking. This is due to the well-developed infrastructure and service driven by a responsive government as per the report released by Commerce and Industry Ministry. तो जो रिपोर्ट आती है जहाँ पर डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनको एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी के बेस पर उनकी इंडेक्सिंग करी जाती है, उनकी रैंकिंग करी जाती है। उसमें गुजरात कई बार से, इवन 2019 में भी ये रिपोर्ट आई थी, तब भी गुजरात की जो पोजीशन थी, जो रैंक थी, गुजरात ने लिस्ट को टॉप किया था, नंबर 1 थी। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी ने एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट रजिस्टर्ड किया है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। 2019 में यूपी की जो रैंक थी वो 13 थी। 20 स्टेट्स में यूपी की रैंक 13 थी और 2021 आते आते ये रैंक 6 हो गई है। सो दिस इज़ अ क्वाइट गुड इम्प्रूवमेंट इन केस ऑफ यूपी। एंड गुजरात, अगर गुजरात की बात करें, गुजरात टॉप्ड इन इंडिकेटर्स सच एज अवेलेबिलिटी, quality of infrastructure, extent of facilitation, ease of obtaining all approvals. तो इन सब रीजंस की जो भी पैरामीटर यूज़ होते हैं लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, गुजरात ने मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में एक अच्छी रैंक, अच्छा पॉइंट और अच्छे स्कोर रजिस्टर किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट वर्किंग टू मेक एग्रीकल्चर लेस पॉल्यूटिंग। हम सभी को पता है कि COP 26 कंटिन्यूसली चल रही है। कब से चल रही है COP 26? अक्टूबर 31 से 12 नवंबर तक चल रही है, तो अभी चल रही है। और सी ड्यूरेशन में गवर्नमेंट, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो या अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट हो, दे आर कीपिंग और दे आर प्रोवाइडिंग और दे आर setting the new targets, new promises, new obligation फॉर मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किए हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है वो नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट के। उसके अलावा गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग और ऑल्सो थिंकिंग और टारगेटिंग टू मेक द इंडियाज एग्रीकल्चर लेस पॉल्यूटिंग। क्यों? क्योंकि इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। और एग्रीकल्चर की बात करें, कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, कई सारे नहीं भी जानते होंगे कि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर पॉल्यूशन। राइस फील्ड के बारे में पता होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस जनरेट होते हैं। जो कार्टल्स हैं, पशुपालन होता है, वहाँ से भी ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होती हैं। तो इस तरीके से फार्मिंग को भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट किए हैं। फार्मिंग कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 14% टू एनुअल GSE एमिशन इन कंट्री। 14% का जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसमें 14% जो है, कैन यू इमेजिन, 14% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ बाई एग्रीकल्चर। 14%, अगर 100% ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है कंट्री इंडिया, माने अज्यूम करें, तो उसमें 14% जो पार्ट है दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो एमिशन राइज फ्रॉम 232 MT टू 2597.4 MT ओवर द पास्ट 50 ईयर। लास्ट 50 सालों में 200 से लेकर 2000 तक का कार्बन एमिशन बढ़ चुका है एग्रीकल्चर के थ्रू ओनली। एंड दैट इज़ वाई कैटल के केस में भी, पैडी के भी केसेस में, और जितने भी एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, गवर्नमेंट इज एक्चुअली इम्प्रूविंग ऑल दीज मैनेजमेंट, कैटल सेल्टर मैनेजमेंट, कल्टीवेशन को लेकर के, ऐसी जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं जो कहीं किसी भी फॉर्म में GSE रिमूव कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव कर रही हैं, एमिट कर रही हैं, उनको फिलहाल के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए ऑब्लिगेटेड है। और गवर्नमेंट ने जो भी COP 26 चल रही है उसमें इसको
reiterate किया है that government or India will try to become or try to make its agriculture environmental friendly. So India has become one of the 27 countries to sign the action agenda on sustainable agriculture at the conclusion of the first week of COP26. और इसीलिए 27 कंट्रीज़ ने जो मिल करके, और 27 कंट्रीज अगर हम बात करें तो वो सारे कंट्रीज जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट। तो 27 कंट्रीज़ ने मिल करके एक एग्रीमेंट साइन किया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर के। उसमें इंडिया भी उस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट है, जिसमें इंडिया ने कमिट किया है कि दैट विल मेक देयर फार्मिंग एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल एंड लेस पॉल्यूटिंग। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.